Hello and welcome students of class 12 to Ujjwal's biology class. We are in the unit 4, that is all about biotechnology. And as we all know that we had already finished the first part, that is how about the principles and the rules and regulation of using the biotechnological processes. And now in this chapter we will be studying about that what are the uses of this biotechnology. So actually the chapter name is the applications on the biotechnology. So let's start. So first of all, we will be going through that what is the need of biotechnology in today's world. So what are the thrust areas? Mainly we are looking into that what are the concepts which can use, the concepts which we had already studied about in the recombinant DNA technology, in the PCR technique, that is your polymerase chain reaction, and what are all the things which we had driven out from the principles, that is the manufacture of the proteins, how the proteins can be made as of our interest, that is after the isolation of the gene of interest, incorporating it into the vector, and how to get modification items. Clear? So if I talk about the thrust areas, then first of all here we will be actually concentrating on to provide improved organism. And how? Now this organism which will be a modification, actually these organisms will be a microbe or any kind of a pure enzyme. And what will be the use of this, the enzyme or the microbe? Now we will be utilizing is as the best catalyst. Okay, what is a catalyst? Which enhance the rate of the reaction, which increases the rate of the reaction. Next, now to grow this organism or the enzyme, we will be obviously requiring to provide the optimum favorable conditions in which this organism or this microbe can be made into a vast number, vast quantity, so that from that we can derive our protein. Next, the downstreaming processes, which we had already gone through in the last part of the biotechnology and its processing, where we were utilizing these hosts which had taken the recombinant DNA. We incorporated this host into the large tanks or the vessels which were known to be the bioreactors, and in the bioreactors we were actually dealing that we were growing that host, and that host's DNA would be just completing its the transcription and the translation process, and finally we will be getting the protein which we will be requiring. Clear? So the entire mechanism will be understanding as a downstreaming processing, those to purify the protein or the organic compound like which we will be dealing. Now, so next part, if I tell that what we are going to study in this chapter, first of all we will be knowing about the concepts of how gene cloning is done. Gene cloning, like obviously we will be having a foreign gene, which will be containing the gene of interest, and we will be just incorporating that gene into the host. So how gene manipulation or how gene cloning is done. Finally, what are the applications of gene and how from a very small amount of gene we can use it in an amplified way. So in that, during the amplification of the gene, we will be generally studying about the PCR technology or about the polymerase chain reaction. Next, all the other DNA analysis techniques used in the field, that these fields can be in the field of medicine, in the field of agriculture. Okay, so ये जो biotechnology आपका chapter है, इसका कहाँ usage है, क्लियर है? जो हम लोग प्रोटीन निकालेंगे, जो हम लोग माइक्रोब बनाएंगे, वो बहुत ही ज़्यादा आपका यहाँ पर तो सिर्फ मेंशन किया है मैंने फार्मा और आपके एग्रीकल्चर. फार्मा और एग्रीकल्चर के अलावा भी they can be widely used in your industrial purpose, clear, in enhancement of the food resources. तो वो कैसे होते हैं वो हम लोग आगे चल के देख लेंगे. So it also sheds light into the ethical implications of manipulation of the genomes of microbes, plants and animals. इसका मतलब
अब देखिए ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ना किसी ऑर्गेनिज्म के जीन को मैनिपुलेट कर रहे हैं बाय एंटरिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ फॉरेन जीन। अब ऑब्वियसली जीन क्या करेगा, ना वो एक्सप्रेस करेगा और वो डिलीवर करेगा अपना प्रोडक्ट। क्लियर? अब इसके कुछ इंप्लीकेशंस भी तो होने चाहिए ना। सपोज करो मुझे पता है कि द एनिमल इन विच द लॉन्ग पेयर ऑफ इंसिजर्स आर फाउंड, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एलिफेंट। अब एलिफेंट के अंदर जो दांत लंबे हो रहे हैं, ऑब्वियसली देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो मेरा मन किया कि मैं उस एलिफेंट से उसके उस लंबे दांत वाला होने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, उस जीन को मैंने ले लिया और अपने नॉर्मल इंसान के अंदर उस जीन को इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो ऑब्वियसली मैनिपुलेशन हो गया। अब इस मैनिपुलेशन की वजह से सपोज करो ये सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो जाए, तो नॉर्मल जो इंसान होगा उसके भी वैसे लंबे वाले दांत आपके आगे, तो वो जब रास्ता वगैरह में जाएगा तो ऑब्वियसली वो सोशली नॉट एक्सेप्टेबल होगा। ठीक? तो मेरे मन में जो कुछ भी होगा वो तो चीज मैं नहीं कर सकता हूं ना यहां पर, बिकॉज आई हैव टू ऑलवेज फॉलो अ सर्टेन काइंड ऑफ एथिकल वैल्यू, सोशल वैल्यू मैं समाज के अंदर जब एंटर कर रहा हूं। तो इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी का जितना भी आपके ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इनको गाइड करने के लिए एक सुप्रीम ऑथोरिटी होना चाहिए, एक गवर्निंग बॉडी होना चाहिए जो ये ठीक करेगा कि किस टाइप ऑफ आपके ये रेगुलेशंस या किस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हो रहा है, क्या इसमें कोई जानवर, कोई लाइफ का कहीं से भी कुछ नुकसान पहुंच रहा है, तो वो सारे आपके जो आपके एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो फिर नहीं होने देगा। क्लियर है? ठीक? सो ऑलवेज वी हैव टू लुक अबाउट द एथिकल implications, because here we are actually studying about the alteration of the genes. ठीक? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो हमें यहां पर याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी से दैट ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, तो ये जो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी है, ये ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ही हो गया द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। क्लियर? तो जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड आपके बायोटेक्नोलॉजिकल इंप्लीकेशंस होंगे वो ऑल विल बी रिलेटेड टू द ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वी विल बी हैविंग द रेड बायोटेक्नोलॉजी। रेड बायोटेक्नोलॉजी का मतलब हो जाएगा जितने भी आपके बायोटेक्नोलॉजिकल का इंप्लीकेशंस होगा इन द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। मतलब जब हम लोग मेडिसिनल कुछ इंप्लीकेशंस की बात करेंगे, मेडिसिन बनाने की आपका कोशिश करेंगे, तब हम लोग बात करेंगे अबाउट द रेड बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, if I talk about gray or white biotechnology, then this will be implication in the field of industrial purpose. जब इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए मैं कुछ एंजाइम, मैं कुछ माइक्रोब्स का आपका प्रिपरेशन कर रहा हूं जीन क्लोनिंग वगैरह करके, देन इट इज नोन एज ग्रे और व्हाइट आपके बायोटेक्नोलॉजी। एंड फाइनली वी विल बी हैविंग द ब्लू बायोटेक्नोलॉजी विच विल बी रिलेटेड एंड ओनली यूज्ड कहां पर? इन द मेरीन एनवायरमेंट। क्लियर? तो एक बार देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी जो होगा ये आपका हो गया किसके अंदर? ना इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अगर हम लोग एग्रीकल्चर की बात करेंगे तब हम लोग उसका नाम देंगे ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। If I talk about the red biotechnology, this will be related to the medicinal field, या जिसको हम लोग फार्मास्यूटिकल के अंदर भी नाम दे सकते हैं इन द फील्ड ऑफ फार्मा और मेडिसिन्स। नेक्स्ट, योर ग्रे एंड व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, दिस विल बी व्हेन इट इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। अगर इंडस्ट्रियल पर्पसेस में इस्तेमाल होता है तब उसको हम लोग ग्रे और व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। एंड फाइनली जब हम लोग ब्लू की बात करेंगे तब हम लोग बात करेंगे अबाउट द मेरीन बायोटेक्नोलॉजी। इन द मेरीन वर्ल्ड जब आपका ये इस्तेमाल हो रहा है तब हम लोग बात कर सकते हैं अबाउट द मेरीन बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर? सो नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मेनली दैट what are genetically modified organisms।
अब यहां पे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंप्लीकेशन शुरू हो जाता है कि किसको हम लोग बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। न अगर सिर्फ नाम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो जिसका जीन को मॉडिफाई कर रहा हूं मैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर उसके खुद के जीनोम को मैं ऑल्टर करूंगा, क्लियर, टू प्रोड्यूस सर्टेन न्यू काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। सो यहां पर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, they can be either plants, they can be bacteria, they can be fungi, they can be animals, ठीक। तो ये सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर मैंने इसके जीन को मैनिपुलेट किया है, ठीक, मैंने उसको ऑल्टर किया है, उस सारे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग इकट्ठा करके बोल सकते हैं दे आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, या जिसको एब्रिविएटेड टर्म में मैं दे सकता हूं GMO। दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसको हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं या इसको हम लोग ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी बोल सकते हैं, क्लियर। अब सपोज करो मैंने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाया तो GMP बोल सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाया तो GMC बोल सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके आपके अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यहां पे आ जाएंगे। नेक्स्ट, 2 जनरल स्ट्रैटेजीज। जब हम लोग यहां पे GMO की बात कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस की बात कर रहे हैं, तो वो मॉडिफिकेशन कैसे होता है ना, 2 स्ट्रैटेजीज यहां पे आएगा, आइदर जीन एडिशन और जीन डिलीशन। अब ये जीन एडिशन क्या होगा ना, एक सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक आपका एनवायरनमेंट होगा, उसको ऑल्टर करके कुछ नया सीक्वेंस में ऐड कर दूं, ठीक। जो जीन पर्टिकुलर होगा उसको मैं काट के अलग करके और वहां पे कुछ नया सीक्वेंस डाल दूं, आई एम एडिंग अ फॉरेन जीन। सो उस केस में आपका हो जाएगा, इसको जीन एडिशन का नाम भी दे सकता हूं। सो इन विच क्लोनिंग इज यूज्ड टू ऑल्टर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लांट बाय एडिंग और प्रोवाइडिंग विथ 1 or more न्यू जीन्स। जब 1 or more न्यू जीन्स मैं उसको ऐड कर देता हूं तब हम लोग बोल सकते हैं कि यस वी हैव ऑल्टर्ड या वी हैव मैनिपुलेटेड द न्यू जीन, द ओरिजिनल जीन विथ 1 or 2 जीन्स। जीन डिलीशन वही सेम, नॉर्मल जीन आपका होगा, ओरिजिनल जीन होगा, उसमें 1 या 2 जीन अगर मैं हटा देता हूं, डिलीट कर देता हूं, तो ऑब्वियसली जो आपका रिजल्ट प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ना बन के कुछ दूसरा टाइप ऑफ प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। सो यहां पर द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स आर यूज्ड वेयर 1 or more ऑफ द प्लांट एग्जिस्टिंग जीन को मैं डिलीट कर दे रहा हूं, क्लियर। तो दीज आर द 2 टेक्निक्स, बाय जीन एडिशन एंड बाय जीन डिलीशन वी कैन एक्चुअली क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट, अगर अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे करके ये जो हमारा आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, एनिमल्स, वायरस, आपके बैक्टीरिया, ये सब हमारे सामने जो आ रहा है, इसका एडवांटेज क्या है, ठीक ना, इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। आज अपना जो सेशन होगा उसके अंदर वी विल बी मेनली डीलिंग विद कि हाउ वी टेक द एडवांटेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर और इन द प्लांट्स, कैसे करके हम लोग उससे फायदा मिलते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जाने से पहले हम लोग एक एडवांटेज देख लेते हैं ऑफ द ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हमें प्रोवाइड करता है। सबसे पहला, जीन क्लोनिंग और मॉडिफिकेशन क्या हेल्प करेगा, मोर टॉलरेंट बनाएगा प्लांट्स को एबायोटिक एनवायरमेंट या एबायोटिक जो स्ट्रेसेस है, जैसे एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम हीट, ये सब से उसको रोकने के लिए, उसको झेलने के लिए क्षमता प्रोवाइड करेगा दिस ट्रांसजेनिक प्लांट्स के अंदर। सो दे विल बी मेकिंग दिस ट्रांसजेनिक प्लांट्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। एंड व्हाट आर द एबायोटिक स्ट्रेस, कोल्ड, ड्रॉथ, पानी की कमी, सूखापन जमीन के अंदर, तो उसको अच्छी तरह वहां पर भी सर्वाइव होने का मौका मिल जाएगा। नेक्स्ट, रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड्स। पहले क्या होता था ना, जैसे ही इरिगेशन वगैरह प्रोसेस होता था, देखिए एग्रीकल्चर जो आपका जो अलग अलग प्रोसेस है उसके अंदर सोइंग ऑफ द सीड्स के साथ साथ हमें ग्राउंड को प्रिपेयर करना पड़ता था बाय एडिंग ऑल द काइंड ऑफ डिफरेंट इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ठीक। हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर भी देखे थे कि ईल्ड तो बढ़ा, बट ईल्ड बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ,
ईल्ड बढ़ने के साथ साथ आपका जो प्रोडक्शन हुआ, ठीक, वो उससे आपका कई सारे पॉल्यूशन भी होता रहा विच ड्रास्टिकली अफेक्टेड द एनवायरनमेंट। तो उस चीज को रोकने के लिए कैसे करके मैं बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उस प्लांट्स को आपके केमिकल पेस्टिसाइड्स का कोई इस्तेमाल ना करते हुए भी वो अच्छी तरह अपने आप ही कीटनाशक बन जाए, वो हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट, हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। अब ये एक एक जो आपके पोर्शन है, इसमें से आपको एक केस स्टडी है जो आगे हम लोग डील करेंगे कि कैसे करके प्लांट का जो आपका हार्वेस्टिंग के बाद टिल इट रीचेस द मार्केट एंड टिल इट इज सोल्ड आउट, ऑब्वियसली एक टाइम फ्रेम रहता है। तो उस टाइम फ्रेम के अंदर जो मेरा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट अगर सही सलामत होगा तो ही उस किसान को सही दाम मिलेगा, ठीक। अगर वो प्रोडक्ट का टेक्सचर, अगर वो प्रोडक्ट का जो आपका प्राइसिंग अगर कहीं पर भी दिक्कत आता है तो उस किसान को होगा क्या, सिर्फ नुकसान, ठीक है। तो उस नुकसान से कैसे उसको बचाया जाए, ना आसानी से आज के दिन बचाया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसजेनिक प्लांट्स। क्लियर? नेक्स्ट, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज। ऑब्वियसली हम लोगों को पता है, वी नो अबाउट द टर्म्स अबाउट दिस क्रॉप रोटेशन। क्यों क्रॉप रोटेशन किया जाता है? ताकि जो सॉइल है इट कैन गेट द टाइम टू रिकवर इट्स वाइटल न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल। क्लियर? क्यों ना हम लोग ऐसा एक प्लांट बनाते हैं जो कि बहुत ही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज करेगा, तो वो खुद भी बढ़ेगा अच्छी तरह, उसके ईल्ड में भी कोई नुकसान नहीं होगा, और जो आने वाला प्लांट होगा खाने वाले समय में उसके लिए भी आपके न्यूट्रिएंट्स वो बचा के रख सके, ताकि वो आने वाला प्लांट भी अच्छी तरह उस न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से ले सके, ठीक है। सो ये भी आपका हो सकता है बाय द यूज ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। दे कैन एफिशिएंटली यूज द मिनरल यूसेज सो दैट fertility of the soil does not get exhausted, fertility of the soil बरकरार रह जाए। Clear? And last, to enhance the nutritional value of the food. इसके बारे में भी हम लोग कुछ ऐसे केसेस देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द गोल्डन राइस। नॉर्मल राइस जो हम लोग खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह का मात्रा ज्यादा रहता है, तो क्यों ना हम लोग ऐसा राइस खाएं जिसमें हमको कार्बोहाइड्रेट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ अगर उसमें मैं एक जीन इंसर्ट कर दूं, द जीन विच कैन प्रोड्यूस विटामिन ए, तो ऑब्वियसली विटामिन ए एनरिच राइस हो जाएगा। सो दैट काइंड ऑफ अ राइस विल बी हाईली न्यूट्रिशनल वैल्यू। सो कैसे करके ट्रांसजेनिक प्लांट्स को हम लोग करके और न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड को बढ़ा सकते हैं, वो भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। नेक्स्ट, अगर हम लोग अब की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा गोल्डन राइस का फॉर्मूला, कि गोल्डन राइस कैसे करके हम लोग बनाते हैं, द फर्स्ट केस स्टडी, ठीक है। सो गोल्डन राइस हमें याद रखना है सबसे पहले कौन बनाया था। सो द नेम ऑफ टू साइंटिस्ट, एक हो जाएगा पॉट्रिकस एंड द अदर विल बी पीटर बेयर। These two were the first to develop a certain kind of rice which can be used for the disease causing, जो आपके जिनके अंदर आपके डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन रहता है, जनरली विटामिन ए, जिसके वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो उन पेशेंट्स को बहुत अच्छी तरह ये राइस खिलाया जा सकता है, बिकॉज दिस कैन इजीली आता है आपके विद विटामिन ए एंड आयरन डेफिशिएंसी। क्लियर है? सो ये आपके बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकता है विटामिन ए को और आपके आयरन को भी। देखेंगे हम लोग, अगर हम लोग बात करेंगे विटामिन ए एनरिच्ड राइस को कैसे बनाया जाता है। सो दिस वाज योर नॉर्मल राइस। सो ये नॉर्मल राइस का आपका जीनोम होगा, ये काटना तो यहां से, हाँ एडिट करेंगे, ये हाथ लग गया। ओके, तो अब चलते हैं, हमें यह पता चल गया कि एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स कैसा है, बट सबसे पहला सवाल, कैसे करके ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाया जाता है, हाउ डू वी मेक ट्रांसजेनिक क्रॉप। तो इसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा, देखो कर्ण, ये तो था ही नहीं, ओके।
सो हम लोग देख लिए व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। अब हम लोग बात करेंगे कि ट्रांसजेनिक क्रॉप को बनाया कैसे जाता है। सो हाउ टू मेक अ ट्रांसजेनिक क्रॉप, कैसे करके हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बना सकते हैं ना। दिस आई विल बी एट, मैं एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। ठीक है, यहां पर देखो एक बैक्टीरिया हम लोग ले लेते हैं एंड द नेम ऑफ दिस बैक्टीरिया इज एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशियंस। ठीक, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस। सो ये क्या हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशियंस। और ये जो एग्रोबैक्टीरियम है ये आपका ट्यूमर इंड्यूसिंग बैक्टीरिया भी बोला जाता है। मतलब क्या है ना, इसके पास ऐसा कुछ आपके जीन है जो कि प्लांट सेल्स के अंदर जाके एंड दे कैन कॉज ट्यूमर्स इन द प्लांट सेल्स। So therefore they are called the tumor inducing bacteria. क्लियर है? सो इनका क्या किया मैंने सबसे पहले ना, इनके जो प्लाज्मिड है, दिस विल बी योर प्लाज्मिड, द एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। सो इस प्लाज्मिड को पहले अलग किया मैंने। सो ये मेरा पास आ गया द टीआई प्लाज्मिड, विच द प्लाज्मिड विच कैन इंड्यूस ट्यूमर। सो दिस इज द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्लियर? और ये ट्यूमर्स जो आपका क्या बोलते हैं द प्लाज्मिड है, इसके अंदर ये पोर्शन, ये जो जीन है, ये जीन आपका रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ट्यूमर इंड्यूसिंग। क्लियर? अब ये मेरा कोई फॉरेन डीएनए था, दैट डीएनए विच हैज माय डिजायर्ड जीन, या जिसको मैं नाम दे सकता हूं जीन ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज माय जीन ऑफ इंटरेस्ट। सो ऑब्वियसली सबसे पहला स्टेप हो जाएगा कि आई विल बी यूजिंग द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड आई विल बी कटिंग बोथ द डिजायर्ड जीन एज वेल एज द प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड। बोथ ऑफ देम हैड द सेम स्टिकी एंड्स एंड आफ्टर लाइगेजिंग हम लोग देख रहे हैं यहां पर कि ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग आपका था, ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग आपका जीन था, उसके बीच आके बैठ गया ये मेरा फॉरेन जो कि माय जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो द प्लाज्मिड इज रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरियम, टी डीएनए जो था उसको कट लगाया बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और मेरा जो फॉरेन डीएनए है उसको मैं इंसर्ट कर लिया। और आफ्टर द इंसर्शन ये जो बन गया मेरे पास, दिस इज माय रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। क्लियर? Now I will be requiring to incorporate this recombinant plasmid into the host cells. So यहां पर मेरा होस्ट कौन है, वही सेम बैक्टीरियम। ठीक, सो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर यही प्लाज्मिड को मैंने डाल दिया। ठीक, सो ये जो प्लाज्मिड बना, दिस इज माय रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मैं इसको लिख सकता हूं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब होस्ट के अंदर आ गया, तब इसी होस्ट को मैं नाम दे सकता हूं, दे आर द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। दे विल बी ऑल्सो नोइंग एज द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट विथ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक, यही ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट अब मैं प्लांट सेल ले रहा हूं, और इस प्लांट सेल के अंदर मैं इस बैक्टीरियल सेल से जो मेरा प्लाज्मिड है उसको अंदर डाल सकता हूं। So the bacterium used to insert the DNA carrying the foreign gene into the chromosome of a plant cell. Chromosome of a plant cell में जैसे ही ये बैक्टीरिया आपका इन्फेक्ट किया, then it is responsible to deliver the foreign gene of interest into the genome of the plant cell. Clear? अब मेरे पास cells आ गए प्लांट के which will be carrying this foreign gene. Clear? मुझे अब यही प्लांट सेल्स को लेके एक कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो करना है। ठीक, क्लियर? तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ कैलस, ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? यही कैलस को बाय द टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर, या जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं माइक्रो प्रोपागेशन। सो बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोपागेशन और टिश्यू कल्चर हम लोग आसानी से इसी से ही
एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और जब मैं नया प्लांट ग्रो कर लिया, अब ये प्लांट भी जो आपका जीन निकालेगा, दैट विल बी माई द फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तुरंत एक बार फटाफट देख लीजिए क्या कर रहा हूं मैं। हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग पहले वाला चैप्टर में पढ़ के आए थे द टूल्स ऑफ द डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जहां पर वी रिक्वायर्ड अ फॉरेन जीन. So here we had a desired foreign gene. We were looking into a vector that can be used to insert this foreign gene into the plant cell. तो नॉर्मली हम लोग कैसे वेक्टर लेते हैं, ना प्रॉपर्टी आता है वेक्टर का, ना यहां पर हम लोग ऐसे वेक्टर लेते हैं नॉर्मली जो प्लांट सेल्स के अंदर क्या इंड्यूस करेगा, ट्यूमर इंड्यूस कर सकता है. क्लियर, ठीक. तो मैंने वही बैक्टीरियल का वो जीन लिया और उस डीएनए को विच वाज हेल्पिंग टू इंट्रोड्यूस अ सर्टेन कैरेक्टर इनटू अ प्लांट सेल, उस पर्टिकुलर प्लाज्मिड को लेके सबसे मैं पहले उसका जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी है उसको मैंने कर दिया डिसआर्म्ड. ये अच्छी तरह आपको समझना पड़ेगा. यहां पे पहले कैसा था, पहले ये आर्म्ड थे. वाई आर्म्ड? इसको एक हथियार की तरह समझो ना आप लोग, कि वो जो आपका डिसआर्म्ड किया है, पहले वो आर्म्ड था. मतलब वो जो प्लाज्मिड है वो बैक्टीरिया के अंदर जब आपके प्लांट सेल को इन्फेक्ट करेगा देन दे विल बी कॉजिंग ट्यूमर्स. क्लियर, ठीक है. तो वो ट्यूमर इंड्यूस कर सकता है. मैंने क्या किया, मैंने उस ट्यूमर इंड्यूसिंग का प्लाज्मिड तो ले लिया, बट अब उसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करूंगा बाय द यूज ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. मैंने उस पर्टिकुलर जीन को काटा. सपोज करो दिस इज माई द जीन विच विल बी कॉजिंग द ट्यूमर इंड्यूसिंग. मैं क्या कर रहा हूं, आई एम यूजिंग द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. इस जीन को मैं यहां से काट रहा हूं और काट के यहां पर मैं एक फॉरेन जीन जो है मेरा, दिस इज सपोज करो द फॉरेन जीन, इसको मैं इंसर्ट कर दे रहा हूं यहां पर. तो जैसे ही आपका ये ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन अगर मैं काट दिया तो ऑब्वियसली इसका नेचर जो है वो बिगड़ गया. इट बिकेम इनएक्टिव, इट बिकेम नॉन फंक्शनल. क्लियर. तो अब अगर सपोज करो यही चीज में जाके अगर प्लांट सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दूं तो प्लांट सेल के अंदर आपके वही डिजायर्ड जीन तो आ गया, ठीक. बट मेरा जो यहां पर टीआई वाला लिया था, क्योंकि टीआई जो जीन है वो यहां पर काम नहीं कर पाया बिकॉज पहले मैं उसको इनएक्टिवेट कर दिया, ठीक. सो कहीं ना कहीं जो कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के अंदर, वही इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का यूज करके मैं कैसे करके एक फॉरेन जीन को बाय इनकॉर्पोरेटिंग इट विथ द डिसआर्म्ड टीआई जीन, कैसे करके मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं इनटू द प्लांट सेल्स. क्लियर. अगर एक बार प्लांट सेल्स के अंदर आ जाएगा वही जीन, नाउ इफ आई ग्रो दिस प्लांट सेल्स इनटू अ मीडियम, then they will be proliferating, they will be growing and they will be forming a structure, जिस structure को हम लोग नाम देते हैं callus. Clear? And after that we will be taking out this callus and by the process of micropropagation or tissue culture we will be growing it into a new plant. क्लियर. तो ऐसे करके हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाते हैं जहां पर हम लोग एग्रोबैक्टीरियम टूमीफैशियंस को लेके और उसके साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं एक नया जीन या मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट. समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो अब चलते हम लोग अपने दूसरे स्लाइड्स में. दैट इज व्हाट आर द एडवांटेज. ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. पहला हमारा केस स्टडी होगा अबाउट द गोल्डन राइस. ठीक. गोल्डन राइस क्या है? क्या ये कोई गोल्डन कलर का आपका राइस है? ऑब्वियसली इसके जो दाने हैं ये आपके थोड़ा सा गोल्डन कलर के हैं, बट गोल्डन कलर क्यों है ये हम लोग देखते हैं. सो दिस गोल्डन राइस वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय टू साइंटिस्ट्स, एक पॉट्रिकस एंड द अदर इज पीटर बेयर. क्लियर. आप लोग नॉर्मली राइस अगर हम लोग बोलेंगे तो हम राइस क्यों खाते हैं? क्योंकि इससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं.
क्लियर। बट अगर सपोज करो यही राइस में मैं इसके कुछ जेनेटिक इंप्लीकेशंस कर दिया और मैं एक ऐसा जीन डाल दिया जो कि बहुत अच्छी तरह अगर आप वो राइस खाओगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट तो मिलेगा ही, साथ साथ ये वो विटामिन भी आपको मिलता रहेगा, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, ये आपका न्यूट्रिशनली एनरिच्ड हो गया है। ठीक, सो मेरा यहां पर काम होगा कि कैसे करके नॉर्मल राइस को हम लोग न्यूट्रिशनली एनरिच्ड राइस बनाते हैं। ठीक है, सो यहां पर ऑब्वियसली देखो ये क्या कर रहा हूं ना, नॉर्मल राइस को हम लोग क्या करेंगे, एक तो आयरन बनाता है जीन वो डालेंगे और विटामिन बनाता है जीन वो डालेंगे और दोनों का कॉम्बिनेशन करके मेरे पास बन जाएगा द गोल्डन राइस। क्लियर, चलो एक चार्ट के हिसाब से हम लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं। सो दिस इज योर व्हाइट राइस, क्लियर, और इस व्हाइट राइस का नॉर्मल दिस इज योर जीन ऑफ द व्हाइट राइस, क्लियर, बट ये व्हाइट राइस के अंदर मुझे डालना है विटामिन ए का जीन जो विटामिन ए बनाता है। अब नॉर्मली अगर हम लोग बात करते हैं तो विटामिन ए जो है, दिस विटामिन ए इज एन एंजाइम, और हमें पता है कोई भी जो एंजाइम होगा उसका नेचर कैसा होगा, वो प्रोटीनेशियस इन नेचर होगा, क्लियर, और अगर प्रोटीन होगा तो मतलब ऑब्वियसली इट इज there will be a requirement of certain kind of gene which will be presenting and which will be making this particular kind of an enzyme. ठीक, so obviously हमारे सेल्स के अंदर विटामिन ए जो है वो एक इनएक्टिव एंजाइम की तरह रहता है, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इनएक्टिव एंजाइम, इट इज ऑल्सो नोन एज बीटा कैरोटीन। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग नाम देते थे बीटा कैरोटीन, क्लियर है, और ये बीटा कैरोटीन जनरली प्रेजेंट होता है इनसाइड द डैफोडिल्स, ये आपके प्रेजेंट होगा इनसाइड द डैफोडिल्स और इनसाइड सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरिया। तो क्यों ना मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा वो प्रेजेंट हो रहा है एक प्लांट के अंदर और एक बैक्टीरिया के अंदर। ठीक, सो अगेन बाय हेल्पिंग एंड टेकिंग द स्टेप्स which are required in our biotechnology principles, we will be finally eliminating this DNA over here and will be taking this beta carotene gene from there, और इन बीटा कैरोटीन को कैसे करके मैं इनकॉर्पोरेट कर दूं इन द जीनोम ऑफ द व्हाइट राइस, और दोनों को क्लब करके मेरे पास ऐसा एक न्यू टाइप ऑफ राइस आ जाए जिसके पास the gene of beta carotene is present and which can easily आपका produce this golden rice, और इस golden rice के जो kernels होते हैं इनके अंदर भरपूर मात्रा में रहेगा वही सेम बीटा कैरोटीन, और यही बीटा कैरोटीन आपका प्रेजेंट करेगा क्या, विटामिन ए। सो ऑब्वियसली सोचो सम पेशेंट्स विच आर सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, क्लियर, हम लोग उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर जनरली आपका क्या करता है, मेडिसिन देता है। बट आज के टाइम में आप देखोगे कि जो लोग हैं वो ज्यादा हर्बल या ऑर्गेनिक चीजों को प्रेफर कर रहा है rather than टू गो एंड आपका सिर्फ और सिर्फ डिपेंड रहना मेडिसिन के ऊपर, ये कोई भी आपका आज इंसान नहीं चाह रहा है। तो क्यों ना उसको एक ऐसा प्रोडक्ट दिया जाए जिसको सिर्फ और सिर्फ खाने से उसका ये जो विटामिन ए का डेफिशिएंसी है वो अगर उसका ठीक हो सकता है, क्लियर। सो इसलिए इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशनली एनरिचमेंट फ्रूट को आपका बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर आज के टाइम में नेसेसरी हो जाता है, और यहीं पे आपका फायदा रहता है द ट्रांसजेनिक प्लांट्स या द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है, समझ में आया। सो कमिंग अगेन बैक टू आवर स्लाइड, नेक्स्ट हो जाएगा, सो ऑब्वियसली गोल्डन राइस आपका क्या हो जाएगा, इट विल बी अ ट्रांसजेनिक वेराइटी ऑफ राइस। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ राइस, ओराइजा सैटिवा। सो इस ओराइजा सैटिवा हमें पता है कि कंटेन ऑफ गुड क्वांटिटी ऑफ बीटा कैरोटीन, तो क्यों ना इसको और अच्छी तरह मॉडिफाई करके एक ऐसा राइस बनाया जाए जो कि भरपूर मात्रा में आपका विटामिन ए और आयरन दोनों को ही अच्छी तरह सफिशिएंट मिले। तो ऑब्वियसली जो पेशेंट्स आपके स्किन डिसऑर्डर या नाइट ब्लाइंडनेस से आपका खफा हो रहा है उनको ये राइस बहुत ही फायदेमंद होगा। Clear? So this was your first case study about the golden rice. Moving on to next, we will be talking about that the
कंसेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके कैसे हम लोग किसानों का मदद करेंगे, कैसे उनको हम लोग वही दाम देने के लिए मदद करेंगे ताकि उनका जो आपके हार्वेस्ट के पास लॉसेस है, अगर वो लॉसेस उसको रोक दिया जाए तो कैसे करके उसको उसमें मुनाफा हो सकता है। चलिए देखिए, यहां पे जाने से पहले हम लोग छोटा सा एक चीज बोलेंगे। दिस इज योर लाल लाल टमाटर, ठीक। अब टमाटर को ऐसे ही लाल करके अगर मैं बेचूं तो जब तक इसके स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ सही रहेगा तब तक ही लोग इसको खरीदने में पसंद करेंगे। अगर ये कहीं से पिचक जाए, अगर ये आपका कहीं से श्रिंक हो जाए, उसका शेप आपको सही नहीं लगे तो ऑब्वियसली आप खरीदोगे भी नहीं, और अगर आप नहीं खरीदोगे तो ऑब्वियसली जो किसान है जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसको उसका हकदार वाला दाम भी नहीं मिल रहा है। तो क्यों ना हम लोग बाय द यूज ऑफ दिस साइंटिफिक बायोटेक्नोलॉजी कुछ ऐसा काम करते हैं ताकि उस किसान को भी उसका मुनाफा मिले और आपको भी सही अच्छे वाले टमाटर का स्वाद पसंद आए, ठीक। तो चलते हैं एक बार देखते हैं फ्लेवर सेवर, एंड यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द नेम कि ये जो फ्लेवर सेवर है ये आपका द ट्रांसजेनिक टमाटो का नाम होता है। क्या है ये ना, यहां पर एक नेटिव जीन को हम लोग ब्लॉक करते हैं। बहुत अच्छी तरह समझिएगा, नेटिव जीन विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द टमाटो, क्लियर, उसको मैं ब्लॉक करूंगा, मतलब उसको फंक्शन करने में मैं रोक दूंगा, क्लियर। क्यों, वो क्या फंक्शन करता है ना, यहां पर जो नेटिव जीन होगा वो नेटिव जीन एक एंजाइम पैदा करेगा और उस एंजाइम का नाम क्या है, पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज, क्लियर। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम, इट इज पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज। व्हाट विल बी द एक्शन नेचर ऑफ दिस पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। अगर नॉर्मल हम लोग प्लांट सेल्स की बात करते हैं तो जनरली आप याद करो, जब क्लास 9th के अंदर आप टिश्यूज चैप्टर पढ़ रहे थे, सेल्स एंड टिश्यूज चैप्टर पढ़ रहे थे, वहां पर आप लोग कोलेन काइमेटोस टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे थे कि कोलेन काइमा जो सेल्स होगा हेक्सागोनल टाइप ऑफ सेल्स है, जिनके जो सेल कॉर्नर्स है वो थिक हो जाते हैं बहुत ज्यादा, एंड दे ऑल्सो हेल्प in maintaining the shape and structure of the cells, clear। और ये जो आपके सेल थिकनिंग्स होते हैं that is due to the presence of a compound pectin, ठीक है। किसके वजह से होता है सेल कॉर्नर थिकनिंग, पेक्टिन की वजह से, क्लियर। आप जनरली जब आपका जो भी फ्रूट है जब वो रॉ रहता है तो यही आपके जो सेल्स है, इन सेल्स के बीच एक सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता है, यही पेक्टिन। पेक्टिन क्या करता है, ये जो दो सेल्स है इस दो सेल्स को बीच में से अच्छी तरह पकड़ के रखने के लिए मदद करता है पेक्टिन। कब, जब वो द फ्रूट इज इन रॉ कंडीशन, क्लियर। बट धीरे धीरे जैसे ही ये आपका पकना चालू हो जाता है, मतलब द स्टेज ऑफ राइपनिंग happens, then comes the use of these enzyme, clear। जैसे जैसे पकना चालू होता है वैसे वैसे यही जो आपका जीन है वो जीन क्या प्रोड्यूस करता है, पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज। और ये जो पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज है ये सीधा करके क्या करता है, इट स्टार्ट्स डिसॉल्विंग दिस पेक्टिन। ये क्या करेगा, धीरे धीरे डिसॉल्व करना चालू कर देगा इस पेक्टिन को। तो ऑटोमेटिकली समझो, अगर पहले जो सीमेंटिंग मटेरियल था वो अगर अब ना रहे तो जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका उसका डिफॉर्म हो जाएगा, उसका सेल्स आपका चेंज हो जाएगा शेप, क्लियर। और तभी जाके द कंपाउंड इथिलीन काम करेगा और इथिलीन आके राइपनिंग और द कलरेशन ऑफ द फ्रूट दे देता है, ठीक। मतलब अगर वही चीज सपोज करो, जब हार्वेस्टिंग हुआ, ये मेरा ट्रक हो गया, मैंने जितने भी ऐसे रॉ वाले टमाटर है उसको यहां पर डाल दिए और उसको मैं मार्केट के अंदर लेके जा रहा हूं, क्लियर। अब रास्ते में कम से कम नहीं तो मेन मंडी तक पहुंचने में मुझे 24 से 36 घंटा लग सकता है। उसके बाद मंडी में जाके वो रिटेलर के पास जाने के लिए और कम से कम नहीं तो 7 से 8 दिन का टाइम लगता है, क्लियर।
अब जनरली अगर रॉ चीज को मैं लेके जाता हूं तो ऑब्वियसली यहां तक जाते जाते यही सब काम होते होते मेरा जो टमाटर है वो बिल्कुल पिचक जाएगा। क्लियर? और अगर उसका शेप चेंज हो जाएगा तो मंडी में उसका भाव मुझे किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। तो क्यों ना मैं ऐसा कुछ चेंज कर दूं कि ये जो जीन निकाल रहा है पॉलीगैलेक्टोयूरेनेस को, अगर इस जीन को मैं ब्लॉक कर दूं तो ऑब्वियसली ये जीन विल नॉट सीक्रिएट दिस पॉलीगैलेक्टोयूरेनेस, या इसका जो रेट ऑफ सीक्रिएशन है वो कहीं ना कहीं घटा देगा। क्लियर? तो अगर ये घट गया तो ये होने में ज्यादा टाइम लग गया। आप चीज को समझो, अगर इसको घटने में आपका टाइम लगा, धीरे धीरे निकल रहा है, तो इस पेक्टिन जो पहले से आपका है, ये पेक्टिन से आपका बिल्कुल राइप होने में जो टाइम पीरियड है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली जो मेरा टमाटर पकने में कम से कम नहीं तो 24 से 36 घंटा लग जाता था, अब वो बढ़ के उसका शेल्फ लाइफ is getting increased. And how so? Because I have blocked the native gene, due to which the secretion of this enzyme polygalacturonase has become deficient. Clear? समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यहां पर क्या देखे हम लोग ना, पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेस को हम लोग ब्लॉक कर दिए और ब्लॉक के हिसाब से यहां पर आपका जो सॉफ्टनिंग ऑफ द फ्रूट है वो धीरे धीरे होता चालू हो गया। क्लियर? सो ये आपका जनरली होता है बाय द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफियरेंस, एंड दिस एंजाइम इज नॉट अवेलेबल एंड हेंस द डिग्रेडेशन ऑफ द सेल वॉल स्लोज डाउन। क्लियर? और अगर डिग्रेडेशन ऑफ द सेल वॉल अगर स्लो डाउन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो पेक्टिन है वो वहां पे रह जाएगा और जो आपका राइपनिंग कंडीशन जो है वो धीरे होता जाएगा। देखते हैं। सो दिस इज योर पॉलीगैलेक्टोयूरेनेस जीन। क्लियर? मैंने क्या किया, इस जीन को तो इंसर्ट कर ही रहा हूं, साथ साथ इसका एंटी जीन एक बना दे रहा हूं। तो हमें पता है कि नॉर्मल की अगर बात करता हूं कि अगर आपका एमआरएनए होगा, सो एमआरएनए से आपका, दिस इज योर एमआरएनए, तो एमआरएनए से आपका प्रोटीन जो बनेगा वहां पर ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ द एमआरएनए विल बी रिस्पॉन्सिबल टू गिव द प्रोटीन। क्लियर? बट यहां पर क्या हो रहा है आपका, यहां पर एक आपके पीजी जीन के वजह से तो एक एमआरएनए आ रहा है, बट जो एंटी पीजी जीन है इसके वजह से एक दूसरा कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड आ जा रहा है और दोनों मिला के आपका एक डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बना दे रहा है। क्लियर? और जैसे ही हमें पता है, मॉलिक्यूलर बेसिस हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि इफ देयर इज अ फंक्शनल डबल स्ट्रैंडेड आरएनए तो ऑब्वियसली ट्रांसलेशन जो होगा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन आपका हो जाएगा बंद, और अगर ट्रांसलेशन बंद हो जाएगा तो जो प्रोटीन बनना था वो प्रोटीन नहीं बनेगा। क्लियर है? ठीक है? सो ऑब्वियसली द रेट ऑफ सीक्रिएशन ऑफ दिस पॉलीगैलेक्टोयूरेनेस विल बिकम स्टॉप्ड। और ठीक ऐसे ही करके क्या हो रहा है ना, ऐसे करके मेरा आरएनए इंटरफियरेंस से जो फ्लेवर सेवर टोमेटो है वो आपका बहुत ही फायदेमंद हो जा रहा है, बिकॉज इससे हमारा जो शेल लाइफ है वो इंक्रीज हो जा रहा है। तो वी हैड लर्न्ड अबाउट द फ्लेवर सेवर टोमेटो एंड योर गोल्डन राइस ओवर हियर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो देखने वाले हैं, हमारा 2 और टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज अबाउट the hirudin producing plant, hirudin that is your anticoagulant, और जो आपका रहेगा that is your BT, the Bacillus thuringiensis, जो बैक्टीरियम को लेके हम लोग BT कॉटन के अंदर इंसर्ट करेंगे, BT आपके कॉर्न के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो ये हम लोग टॉपिक आने वाले टाइम में देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to our channel, that is Discovery International School, and get you tuned to getting more videos of your kind. Thank you. Have a nice day.